الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ اللہ کا شکر۔ تیاری ہو رہی ہے پھر گرینڈ ٹیسٹ کی؟ ادوات مطلب الفاظ، سوال کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں ان کو ادوات استفہام کہتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ سوالیہ الفاظ، یا پھر عربی میں کہیں گے ادوات استفہام۔ اب ادوات استفہام کی تعریف کیا ہے، یعنی کہ جو سوالیہ الفاظ ہیں ان کی تعریف کیا ہے؟ اب اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہوگا کہ وہ الفاظ، ادوات استفہام ہوتے ہیں وہ الفاظ یا حروف، یعنی اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حروف استفہام پڑھے تھے، آپ نے اسماء استفہام بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جب ادوات استفہام کی بات کریں گے نا تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی، حروف استفہام بھی اور اسماء استفہام بھی۔ اب وہ الفاظ یا حروف جن کے ذریعے کسی شخص، چیز، جگہ، وقت، حالت، تعداد، کیفیت یا کسی اور امر، کسی اور کام کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ان الفاظ کو ہم ادوات استفہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک سب سے پہلے جو ہے رول سسٹر سنیلا بلائیں کسی رول نمبر کو، ہم انشاءاللہ اس جی کو میم، شروع کرتے ہیں۔ جی میم، رول نمبر 67 آپ آئیے۔ جی جی رول نمبر 67 اچھا آپ کے سامنے ہے۔ ابھی میں نے ادوات استفہام کی آپ کو ڈیفینیشن بتا دی ہے، تعریف بتا دی کہ وہ کیا ہوتے ہیں، اور وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ جی نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم دوسرے سوال سے شروع کریں گے کہ ادوات استفہام کی کتنی اقسام ہیں اور نام لکھیں۔ ادوات استفہام کی دو اقسام ہم کہہ سکتے ہیں، ایک وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے، اور دوسرے وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہیں کے علاوہ کسی تفصیل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جی آپ ان کو دو، اگر ان کا نام رکھیں تو کیا رکھیں گے؟ تو نمبر 1 حروف نم استفہام۔ جی حروف استفہام اور اسماء استفہام۔ حروف ہاں استفہام جو ہے وہ آ اور حل ہے، الف اور حل ہے، ہم، اور اسماء استفہام جو ہے وہ 10 الفاظ ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں مختلف سوالات کرنے کے لیے۔ اچھا فار یہ ایگزامپل، صرف 10 نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن موسٹ آف، یعنی کہ موسٹلی یہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اوکے، زیادہ تر ان الفاظ ان اسماء کا استعمال ہوتا ہے، لیکن 10 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں کم جیسے ما، من، کیفا، کم، اینا، انا، اور متا، ایان، اور انا اور لما۔ ہاں کئی فا یہ سب جو ہے نا یہ اسماء استفہام ہیں۔ جی اب جو نیکسٹ سوال ہے، حروف استفہام جیسے کہ آپ نے بتا دیا آ اور حل ہیں، جن کے جی ان حروف استفہام سے اس طرح کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے۔ اور اسماء استفہام کے بارے میں جو کوشچن ہم پوچھتے ہیں اسماء اسماء استفہام سے، وہ اسم جن کے ذریعے کسی شخص کی جگہ، وقت، کیفیت، تعداد، کسی بارے میں بھی سوالات کیے جائیں تو وہ یہ آپ نے بتا دیے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، من جو حرف استفہام ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ من جو ہے وہ عاقل مخلوق کے لیے سوال اگر ہم کریں گے تو اس میں یوز ہوگا۔ من کا مطلب ہے ہو، یعنی کون۔ ہاں ہاں کون۔ تو ابھی ایک آپ اس کا بنائے چھوٹا سا جملہ، کیا چھوٹا سا مطلب دو
حروف سے मुश्तमिल आप इसका जुमला बनाएं, कैसे बनाएंगे? मन रब्बु का। बड़ा आसान. हाँ, मन रब्बू का, ये भी ठीक है. मन आपका, मन जा, मन अनसा, तो यानी कि आप ये इस तरह से कुछ भी बना सकती हैं. और ये सारे आपने देखा, यहाँ पे हम आकिल के बारे में बात कर रहे हैं. जब किसी आकिल के बारे में सवाल पूछना हो तो मन का इस्तेमाल किया जाता है. और जो है इसमें माँ और माजा जो है, वो बताएं माँ किस लिए होता है? माँ का मतलब है कि क्या, व्हाट। हम्म, और आई थिंक ये गैर आकिल के लिए भी यूज होता है। हाँ, और गैर ज्यादातर आकिल के. जी ज्यादातर माँ जा की तरह इस्तेमाल होता है ये। हाँ, माँ भी इस्तेमाल होता है, माँ जा भी आता है. ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है. अब ये जो माँ है, गैर आकिल की चीज या शय के बारे में जब क्वेश्चन करते हैं तो माँ का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मसलन कोई एग्जांपल है आपके ज़हन में? माँ इसमु का। हाँ, मसमुका या माँ हाजा, ये क्या है? ठीक हम्म। है, इस तरह के आप सवालात इससे कर सकते हैं माँ के लिए. और माजा का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये नहीं पता मुझे। माँ भी जो है ना, माजा की तरह ही तकरीबन होता है. माजा किसी काम या चीज के मुतालिक सवाल करने के लिए भी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जिस तरह से किसी माँ भी उसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादातर जो माँ को माजा भी, यानी कि दोनों का मीनिंग एक है. और कई जगहों पे माँ इस्तेमाल कर देते हैं और कई जगहों पे माजा इस्तेमाल कर देते हैं. ठीक है, तो ये भी किसी काम या चीज के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. माजा अलल कुर्सी, अगर मैं ऐसे कहूँ तो हाँ, माजा माजा अलल अलल कुर्सी, हाँ कुर्सी। ये भी ठीक है. हाँ, कुर्सी के ऊपर क्या है? ठीक है, ये भी जो है बिल्कुल ठीक है. और इस तरह से माजा करा, तुमने क्या पढ़ा? ठीक है, माजा कतबा, तुमने क्या लिखा? ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, आईना किस चीज के बारे में सवाल करने के लिए आता है? ऐना का मतलब होता है वेयर, कहाँ। जी. कहाँ है जी। तो अब पूरा बताएं ना, अगर जितना भी आपको पता है उतना बताएं, बाकी अगर कुछ हम एडिशन कर लेंगे अगर ना मुकम्मल हुआ तो. यानी ऐना किसी चीज के बारे में पूछेगा कि वो कहाँ है। जी. हाँ, किसी, यानी कि और इसके बारे में बताएं ना. आईना क्या कहलाता है? आईना जगह के बारे में सवाल करने की ना, जगह, तो फिर इसको और क्या कहते हैं फिर? जगह किस मतलब बारे में जर्फ, सवाल करने के लिए आता है? जर्फ मकाम हाँ, पूछना जर्फ, चाह रही है हाँ. ना, जर्फ जी मकाम, जी, ओके। हाँ, इसको ज़र्फ़ मुकाम भी कहते हैं क्योंकि ये जगह के बारे में सवाल करते हैं ना इसके जरिए. आईना जो इसमें इसमें इस्तेफाम होता है, उसके साथ हम जगह के मुतालिक सवाल करते हैं, तो फिर इसको जो है ना ज़र्फ़े मुकाम भी कहा जाता है. ठीक है, आईना को जैसे एग्जांपल देंगी तो कैसे देंगी आप? कोई भी बनाए. ऐना, ऐना, ऐना किताबी, मेरी किताब कहाँ है। हाँ, ये भी ठीक है. मेरी किताब कहाँ है, या आईना किताबू का. हम्म। ठीक है. أين और नेक्स्ट تذهب बता. أين تذهبون हाँ, आईना तजहा, تذهبون قرآن वो असल में आ गया ना, फिर मुदारे आ गया ना. अईना जी जी ज़हाबा, तुम कहाँ गए? أين अईना ज़हाबा, वो कहाँ गया? फिर ये हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, मता का इस्तेमाल कब होता है? यानी कब और कहाँ मता कब when जी. when के लिए आएगा अभी इनको मता रोल नंबर नसरुल्लाह 67 को अभी इनको करने दें. इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के ओके बाद हम मैम दूसरे स्टूडेंट लेंगे. नंबर 67, आप क्या बोल रही थी? मता का इस्तेमाल कब होता है? जब किसी चीज के बारे में पूछा जाए कि वो कब होगी, आम हालात में। और अयान जो है वो किसी खास हालात के तौर पे पूछा ओके, जाता है। अभी बता ही देना, अभी बता ही करे ना. अच्छा, मता मता का यानी इस्तेमाल होता कब, है व्हेन।
when होगा, कब कब, होगा। हाँ कब, ये तो हो गया ना हमारा कब, इसका एक लुग़वी मानी हो गया, ठीक है। इसका लुग़वी मता कब, तो ये मैं ये था कि मता का इस्तेमाल कब होता है, मतलब वक्त तो या ज़र्फ़ जमाने के बारे में जब सवाल। ज़मा के, जी, ज़र्फ़ हाँ, ज़मा के। वक्त या के बारे में सवाल जब दिया जाता है, जमाने के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है मता, ठीक है। अब जी, आपके क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह के होते हैं ना, कभी आप किसी जगह के बारे में इंक्वायरी कर रही होती है, कभी ना किसी टाइम के बारे में इंक्वायरी कर रही होती है, तो ठीक है, और ये फिर उसके हिसाब से ना अरबी में मुख्तलिफ अस्मा हैं। तो अब ये जो मता है, ये आप वक्त के बारे में अगर किसी से पूछ रही हैं या जमाने के बारे में, तो फिर ये हम मता का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और इसको इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मता को? ज़र्फ़े ज़मा। जमा, इसलिए इसको ज़र्फ़े जमा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमाने के वक्त के बारे में सवाल हो रहा है, तो फिर ज़र्फ़े जमा भी इसको कहा जाता है। मिसाल क्या देंगी? मता सलातुल इशा, इशा की नमाज कब हो गई, कैसे कोई कैसे। फेल बीच में डाले ना आपने, तो जुमला हमसे अच्छा, नहीं, कोई फेल नहीं आपने डाला ना। मता अकामतिल अकामती अकामती सलातुल इशा। मता साफा मता ज़ाहबा, तुम कब गए, यानी कि टाइम के बारे में हो गया ना सवाल कि तुम कब गए। वो फिर उसके बारे में अब बताएगा कि कितने बजेगा, या टाइम बताएगा, या फिर कोई दिन का कोई पहर बताएगा कि अल यौम, या फिर जो है ना वो सुबह शाम, गदन गया, सुबहन गया, जो फिर इसके बारे में ना जो भी होगा। या फिर मता ज़हाबा अबू का, तुम्हारे वालिद कब गए। या मता ज़हाबा अहा का, ठीक है। ये अहू का, सॉरी अहू का, तो ये अब यहाँ पे आ, इस तरह के सवालात जो टाइम के बारे में, वक्त के बारे में पूछे जाते हैं, तो ये मता का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। रोल नंबर 67, नेक्स्ट है। जी मैम, आयशा 32, सॉरी 53 मैम। जी, रोल नंबर 53, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफा कैफ, किस चीज के बारे में किस हाँ, कैफा। किस तरह, हाउ कहते हैं ना इंग्लिश में, कि हाँ किस तरीके से, किसी हाँ, चीज के यानी बारे कि में, किस। कैफा होता है, हम जी किसी की हालत, कैफियत या कोई तरीका कार के बारे में सवाल करना हो, ठीक है, तो फिर हम जी कैफा का इस्तेमाल करते हैं। जी। जैसे कि तो कुरान कैसे, में अलम तरह कई फफाल है, तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। हाँ कैसे किया, ठीक है, क्या जी। कैफियत, कैफ हालत बयान करनी तकफुरून, हो। हाँ अल्लाह के साथ कैफा कैसे, हाल, कैफा हाँ हालू, इस्तेमाल है। आप कैसे हाँ, हैं। कि उसकी हालत के बारे जी में दरियाफ्त कर रहे हैं, ठीक है। तो जी ये कैफा का हो गया कि किस चीज के बारे में सवाल किया जाता है, कैफियत, हालत के बारे में किसी के सवाल करना हो तो हम कैफा कहते हैं। अब जी। कम का इस्तेमाल का किस लिए होता है? कितना, हाउ मच, हाउ मच, हाँ, हाउ मच हो गया, तो इसमें क्या, किसी चीज इसको के एक्सप्लेन बारे में कैसे करें? सवाल करने के लिए, पूछने के लिए। आ, कम इंदर रियाली ने, आपके पास कितने हाँ, रियाल यानी हैं। कि आपके ना सिंपल अल्फाज में कम जो है तादाद और मिकदार, तादाद या मिकदार पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसी चीज की मिकदार या तादाद आपने मालूम करनी हो, तो फिर ओके हम कम का ओके। इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कम जी दिरहम अनिंदा का, कम किताब अनिंदा का, मतलब तादाद के बारे में ही पूछ रहे हैं ना। जी जी। तो तेदाद और क्या मैम, तेदाद और मिकदार, हाँ, तादाद और मिकदार के और बारे में जब हम सवाल तादाद करते और, हैं, तो जी हम मैम। कम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जी। क्वेश्चन है, अय्यू का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसके बारे में बताएं, अय्यू के बारे में। आयु क्या मतलब, कब, ये भी उसी तरह से आएगा। आयु, आयु ये जो है जर्ब बनकर हाँ, आता है ना। अय्यू के, हाँ अय्यू एक इसमें आयु, इस्तेफाम है, इसके बारे में भी डिटेल है, आप बताएं क्या इसका है जी, इस्तेमाल। ये आयु भी आता है, अय्या भी आता है, अय्यी भी आता है, ये जो है तीनों हालतों में भी चेंज होता है। यानी
کہاں کے لیے یہ جیسا کہ ایان. ہاں یہ مضاف بن کے آتا ہے، یہ اس طرح سے ہاں تو کہ یہ مضاف بن کے آتا ہے تینوں. یہ جو ہے باقی اسماء استفہام جو ہے وہ سب جو ہے نا مبنی ہے، ان کا مبنی جو ہے ہے نا لیکن اعراب چینج نہیں ہوتا. لیکن جو ایو ہے یہ اس میں جی استفہام ایسا ہے کہ اس کا اعراب چینج ہوتا ہے. یہ ایو، جی ایا اور ایی تینوں حالتوں میں آتا ہے. اس کو مورب کہتے ہیں. ہاں اور یہ ایو جو ہے کسی مخصوص فرد یا چیز کے انتخاب کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے جی ہیں نا ایو کتاب قرأت، کہ تم نے کون سی کتاب پڑھی. یہ مخصوص چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے نا، کہ کسی جی کسی مخصوص فرد یا چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. جی یہ جو ہے حالت مرفوع بھی استعمال ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی مجرور. استعمال ہوتا ہے. جی اور نیکسٹ جو ہے اچھا میری انا. آواز کلیئر آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سب آج کو؟ میم آواز تو کچھ سلو ہے، تھوڑی سلو ہے میم، آ رہی ہے لیکن سلو ہے. اچھا سلو ہے. پتہ نہیں پھر جی کیا جی مسئلہ میم. ہے، کیوں سلو ہے. کچھ نیٹ کا بھی جو ہے نا تھوڑا سا پرابلم ہے. جی میم. لیکن سمجھ سک رہے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں. چلے میں کوشش کرتی ہوں میں اونچی بولنے کی کہ آپ لوگوں جی کو صحیح سمجھ آ سکے. اچھا اب ایو جو ہے نا ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا ایو، ایا اور ایی بھی استعمال، یعنی کہ جو ایو ہے وہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. مطلب اس کے آگے جو اسم آئے گا پھر وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا، ہاں مضاف الیہ ہوگا، حالت جر میں ہوگا. جر ٹھیک میں ہے. ہوگا. اس کا جو نیکسٹ اسم آئے گا. ٹھیک ہے. چاہے وہ جی ایو جی ہو یا ایا ہو یا ایی ہو. کیا. ٹھیک ہے. تینوں حالتوں میں اس کا اگلا اسم جو آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا، حالت جر میں ہوگا. اور اس کے بعد آپ کا فعل آئے گا. جن کہ آپ اگر ان اسماء استفہام کو جملہ اسمیہ میں استعمال کر رہی ہیں تو پھر آپ کا وہ کہلائے گا کہ جملہ اسمیہ استفہامیہ. اگر اب جس انہی اسماء استفہام کو جملہ فعلیہ کے ساتھ استعمال کر رہی ہیں تو وہ پھر جملہ فعلیہ استفہامیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. جی صحیح صحیح. اچھا یہاں پہ انا کے دو معنی، انا کے دو میننگ لیے جاتے ہیں، تو وہ کون سے ہیں انا کے بارے میں؟ کہاں سے آئے گا میم؟ کہاں سے؟ انا ایک ایک تو کہاں ہوگا، سے، کہاں سے، اور ایک اور ایک کہاں سے اور کیسے. کہاں کیسے. سے اور کیسے. کیسے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. انا انا حاضر لکی لکی. حاضا، انا لکی حاضا سورہ آل عمران میں ہاں آتا ہے. انا جی لکی حاضر. یہ کہاں سے تو آئے یہ تمہارا. واپس کہاں سے آئے یا پھر کیسے آئے، جی یا کیسے انا آئے. حصل کا اعلی حاضل کتاب، کہ اعلی حاضل کتابی، کہ تم نے یہ کتاب کہاں سے حاصل کی. جی جی. کہاں تو اور کیسے. جی ایانا، انا ایانا کا استعمال کس موقع پر ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بڑی خبر کے لیے، جیسا کہ قیامت کے لیے ایان مرساہا، یہ کہ بڑی چیز کے لیے، بڑی خبر کے لیے، قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر. ہاں مطلب قیامت کے لیے کسی عظیم جو ہے نا عظیم واقعے کے لیے، کسی بڑی عظیم چیز کے واقعے لیے کے بارے میں. ٹھیک ہے. جی اور یا جی پھر جیسے قیامت ایک عظیم واقعہ ہے نا، تو اس کے بارے میں جی اگر سوال کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی اور عظیم واقعہ ہے جو چاہے ماضی میں ہو چکا ہے چاہے مستقبل میں ہے، تو اس کے حساب سے یہ آپ کے فعل کے مطابق لگے گا. فعل اس جی میں ہوگا لیکن واقعے کے مطابق ہوتا ہے. کوئی عظیم واقعے کے متعلق جب سوال کیا جاتا ہے تو ایانا کا، جیسے ایانا کیا کیا. مرساہا، ایان مرساہا. ہاں ایانا یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن کب ہوگا. ایانا کب آئے یوم گا. القیامہ. اب یہاں پہ یہ اس طرح کے جو سوالات کے لیے. اچھا جملہ فعلیہ میں ادوات استفہام کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے نا، شروع میں اسٹارٹنگ میں ہی ہوتی ہے. ہاں بالکل. جو ہے ہم اس کا سب سے پہلے ہم اسٹارٹنگ یا شروع. جملے میں چاہے جی جی. جملہ یا ہے. ہاں فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو تو جملے کے شروع میں. آغاز میں آتی ہے. جی بالکل. جی جیسے من کتب الدرسا، ان کے شروع میں آپ اس کی کوئی بھی اگزامپل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. جملہ اسمیہ میں حل کی ایک مثال دیں. حل حل کوئی حل بھی. کا حدیث الغاشیہ. حل ہاں یہ کا بھی جب ٹھیک ہے. تمہارے پاس یہ خبر پہنچی ہے. حل کا حدیث الغاشیہ. ہاں غاشیہ خبر حل پہنچ. انتا طالبہ،
हल क्या तुम हाँ तालिब जी इल्म जी हो, हल हल मिन अकला। हल मिन अंता हल मिन अंता वेयर आर यू फ्रॉम हाँ, हल मिन हल मिन अंता, मन अंता मन नो मैं मिन अंता फ्रॉम वेयर आर यू आप कहाँ से हैं अच्छा, जी जी। तो ये जो है ना, इस तरह के आप हल लगा के जिनका, नहीं ये तो आप हल का जवाब तो होता है ना, हम इस तरह के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि जिनका जी हाँ या ना में आंसर हो सके। जो आप कह रही हैं हाँ हल मिन अंता, ये तो इसका तो नहीं बनेगा ना। हल जो जी है ना, जी हल अंता, जी हाँ या हल हाँ हल हाँ हल करा हाँ दरसा, क्या तुमने किताब पढ़ लिया है? हल करा हल दरसा, अकरा जी हाँ ठीक है। तो आ ये इसके अबू बारे में की सवाल आ है। आ अबू की हल अबू की मुदर्रिस हाँ, क्या तुम्हारा वालिद जो है मुदर्रिस है? तो ये इस तरह जी के जी सवाल जो है ना, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जा कि हाँ सके, या ठीक ना में दिया जाता है। जी मैम जी है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। रोल जी नंबर जी मैम 53। ऐसा जी जी मैम नेक्स्ट मैम इसकी बुलाएं। इसकी नोट्स मिलेगी मैम कहीं नोट्स इसकी हल अता ये मता अयाना ये कभी यूज किया जाता पर्टिकुलरली हाँ, पर ये आपको है ना कि मता जो है वो वक्त के बारे में सवाल के लिए, वक्त या जमाने के नहीं बारे में इसके सवाल नोट्स मैम किया जाए। इसके नोट्स ग्रुप वगैरह में है मैम नोट्स नोट्स इसके मैंने तैयार तो नहीं किए, लेकिन जो है ये इनका क्योंकि मीनिंग है ना, समझ लें इनके मता कब, तो इसके हम कहते हैं कि इसके नहीं बारे में सवाल जी करे, अगर वही आना। ये क्वेश्चन नहीं मैम ये क्वेश्चन अगर आए तो जैसा आपने बताया ना तहकीक के लिए मकदार के लिए इस तरह से तो ऐसा ही लिखना होगा ना हमको तो इसलिए बता पूछ रही नहीं, हूँ अच्छा कि ये टू द जरूरी नहीं है, पॉइंट मैं अच्छा ये आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं कह रहे, ये पढ़ा रहे कि आपको ये ग्रैंड टेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, ग्रैंड टेस्ट में इस नहीं नहीं तरह से नहीं मैम आएंगे। ये आपको बस जी जी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ओके ठीक है। मैम ये ओके नो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग नो के लिए है प्रॉब्लम कि आप अगर, क्योंकि आप इंशाल्लाह आगे जाके आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी, तो फिर आपके लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाए हर चीज में ना, आप आसानी से समझ सके चीजें। जी मैम जी मंजा इस तरह आइदर से देखिए, आपने ये प्रैक्टिस किया, आपको छोटे छोटे आप देखें सवालात खुद बना सकती हैं। यानी कि आप जी अगर करने की कोशिश करें तो आप कर सकती हैं ना। यानी कि आप इन जी जो इस्माइल इस्तफाम को इस्तेमाल करके, तो आप इतना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वोकैबुलरी है कि छोटी छोटी से आप सेंटेंस अगर जी आपको कहा जाए तो आप खुद बना लें। जी जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मैम नीना जी नेक्स्ट बोला। जी मैम। मैं अन्ना की कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? अन्ना कुरान पाक में जो है वो भी आया हुआ है, अन्ना अन्ना लाकी हाजा, कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आए। और मैंने भी अभी एक एग्जांपल दी थी कि अन्ना अ, अन्ना हसलता अला हाजिल किताब, ये तुमने ये किताब कहाँ से हासिल की। अन्ना हसलता या अन्ना अन्ना वाजदा। जहबता भी आ सकता ना सिस्टर अन्ना जहबता भी आ सकता नहीं कहाँ से तू आया नहीं नहीं नहीं, ये तो जहबता होता, वो उसका तो नहीं बनता ना, तुम कहाँ गए, वो तो आईना आ सकता है ना, आईना जहबता, नहीं 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 तुम सिस्टर कहाँ ये गए। अन्ना अन्ना कहाँ कैसे, से तू आया कहाँ से तू आया कहाँ से तू आया, आया होगा तो ये नहीं होता ना, वो तो होता आया है तो जा राजा। सॉरी 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 जा जा नहीं, ये इस तरह से नहीं होगा। नहीं, इसका इसके साथ नहीं होता ये, इनके ये अन्ना है कि इसके दो जो कहाँ से और कैसे। जैसे अन्ना हसलता अला हाजिल किताबा, तुमने ये किताब कहाँ से हासिल की। अन्ना अन्ना लाकी हाजा, ये तुमने कहाँ से तुमने ये लिया, ठीक है। जी या जी फिर कैसे लिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन अगर कोई होगा इंशाल्लाह इसके बारे में होगा, एग्जांपल्स भी हम बना लेंगे, लेकिन आप लोगों एक को अभी एग्जांपल ये होना चाहिए कि ये अगर हमारे पास इस तरह का उर्दू में आ जाता है सवाल, तुमने ये चीज कहाँ से ली। अन्ना हाजा, अन्ना वाजदा हाजा, तुमने ये कहाँ से पाया, मतलब इस तरह कहाँ से से भी पाया आप लिया। इस तरह के जो सवालात हैं आप इसके बारे में अन्ना के लिए कर ले। अन्ना का इस्तेमाल असल में थोड़ा कम ही है, ज्यादातर जो है
اور ان کے لیے استعمال ویسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا بھی استعمال ہوا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کا اگزامپل دی گئی ہے۔ نہ معنی بھی حل کہاں ہے اور حل معنی بھی کہاں ہے؟ نہیں، حل میں نے کہا، حل معنی کیا ہے پھر؟ حل تو کیا ہوتا ہے نا، کیا؟ چیز جیسے ہم انگلش میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا، آر یو دیئر، یا پھر جو آر از کا ہم جو ہیلپنگ ورڈ جیسے لے کے آ جاتے ہیں نا، ہم جملے کے شروع میں لے کے آتے ہیں کہ کوشچن پوچھنے کے لیے نا، تو یہ حروف استفہام جو ہوتے ہیں نا اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ یا پھر از دس یور بک، یہ کیا تمہاری کتاب ہے، تو اس طرح سے نا یہ وہ آگے جواب ہوگا نہیں یا جو ہے ہاں میں ہوگا جواب نا، یہ یا حل ہوتے ہیں، ان دونوں کا میننگ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے دونوں کا مطلب نا، اور یہ سمپل جو ہے نا کہ آپ کا جب جواب، تو آپ کچھ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، تو پھر یا حل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انت مدرسن، کیا تم جو ہے وہ استاد ہو، تو جو ہے نا وہ کرا درسا، کیا تم نے اپنی کتاب پڑھ لیا ہے، اپنا سبق پڑھ لیا ہے، تو اس کا ہم آنسر کریں گے نہیں میں نے نہیں پڑھا، یا میں نے پڑھ ہاں نام ہوگا یا لا ہوگا، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حل جو کا نا دونوں کا میننگ سیم ہی ہے، کیا نیلا نیکسٹ بلائیں، یہ اب جی نیکسٹ ہم میم، جو زیادہ تر اسٹوڈنٹ نے اپنے رول نمبر نہیں لکھے، اور ابھی فی الحال 81 آپ آ جائیے، باقی اسٹوڈنٹ سے جی سسٹر، ریکویسٹ باقی ہے آپ کہ وہ جماعت اپنے رول اپنے رول نمبر نمبر ہاں لکھ لیں تاکہ بلانے میں ذرا آسانی ہو آپ لوگوں کو۔ جی رول نمبر 81 یہاں پہ ہمارے پاس ہے، جی سسٹر، کچھ جملے ہیں، جملہ استفہامیہ ہیں، تو اس جی کو آپ نے بتانا ہے کہ وہ اس کا ایک تو ترجمہ بتانا ہے، اور پھر ہر ایک جی جو ہے ایک کلمہ کی آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے۔ من جا المدرسہ کی، من جاء الى المدرستی، کون آیا مدرسے سے، مدرسے کون آیات نا سسٹر وانگا آیات نا جا کا تو کون آیات نا، آیا ہاں مدرسے کی طرف، ہاں کون آیا، کون آیا مدرسے کی طرف، جی کریکٹ ہے نا سسٹر؟ جی آپ بولیں اس کو شروع کریں آپ۔ جی، من کو استفام، حرف استفام، جا کو فعل، الال مدرستی کو متعلق فعل ہو گیا سسٹر، جار مجرور رہنے سے۔ ہاں جار مجرور ہو گیا، من جو ہے اس میں استفہام ہو گیا، جی مبنی یہ ہو گیا مبنی علا، جو ہوتا ہے مبنی علا نہ تب من کو تم سکون، نہ یہ ہو جائے گا نا سسٹر، وہ مرفوع ہو جائے گا نا، وہ فعل فاعل ہو جائے گا نا، کون آیا؟ ہاں فائل کے بارے میں، اچھا یہاں پہ یہ من جو ہے نا وہ فائل کے متعلق سوال کرنے کے متعلق آیا ہے، کیونکہ من جا ہوں تو کون آیا، مطلب یہ فائل کے متعلق سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس کا میں ہوں اس لیے آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں، اس میں استفہام ہے، مبنی علی سکون ہے، مطلب یہاں پہ جزم ہے، من کے لاسٹ میں آ رہی ہے نا، اس کی اعرابی حالت جی جی مبنی ہے، ہوں، کیونکہ یہ مبنی ہے جو ہے سکون ہے، مبنی علی سکون، اور فی محل رفع، مطلب اس کا جو محل ہے، یہ جو فائل بنے گا تو یہ حالت رفع میں چلا جائے گا، اور فائل کے جی متعلق سوال پوچھنے کے لیے یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے من، من کون آیا جی جی مدرسے کی طرف، مدرسے کی طرف کون آیا، ٹھیک ہے۔ من ہوں، کتب درسا، من کتب درسا، کس نے لکھا سبق کو، کس نے لکھا سبق کو، نہیں ہاں کون لکھا سبق کو کر کوانگا سی سسٹر، کون کی کس نے کر کوانگا کی، اس کے آپ کو کیونکہ اردو میں ہمیں جو ہے نا الفاظ چاہیے ہوتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، تو من جو ہے نا وہ کون کے حملے سے یا کس نے یہ لکھا درس، ٹھیک ہے، بات ہوں وہی ہے نا کہ ہم کسی کے جی متعلق پوچھ رہے ہیں، کسی عاقل شخص کے متعلق سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی، اس میں آپ کو من کو یہ مبنی ہوگا، یہ حرف اسماء استفہام ہوگا، رفع کے حالت میں ہو جائے گا،
فائل کے جگہ میں آلے گا. کتبہ کو فعل, درس کو مفعول منصوب رہنے سے. ہاں درسا منصوب ہے مفعول بھی ہے. یہ جی مفعول بھی ہے منصوب ہے. ٹھیک ہے. یہ جی. کیونکہ یہاں پہ اس کے کہ کون یا کس نے درس ہاں, سبق لکھا کس لکھا. نے اور یہاں سبق پہ لکھا. ہمارے پاس کاتبہ کو کیا کاتبہ فعل کتبہ. فعل ماضی. ہاں کہ فعل ہاں, ماضی فعل ماضی, فعل ماضی. مبنی علی فتحہ. فعل ماضی مبنی علی فتحہ. مبنی علی الفتح. ہاں مبنی علی فتحہ. ٹھیک ہے. اور الدرسہ مفعول بھی. اور درسا من جو مفعول ہے وہ منصوب, فاعل کے. منصوب ہے. ہاں مفعول ہوگا. ہاں مفعول بھی. اس کو کہتے ہیں مفعول بھی. اور من مفعول جو ہے به. وہ فاعل کے بارے میں ہم سے سوال کرنے کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جی. فاعل کے بارے میں سوال ہے اس کے لیے. یہ ہم، آپ کیا کہہ رہی ہیں منصوب بھی ہی منصوب به. مفعول مفعول به. بھی ویسے. اچھا اس لیے ابھی بتا رہے جو ہم مفعول ویسے تو ہم جو ہے نا اس کو مفعول ہی ابھی تک پڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی مفعول کی ویسے ہاں, 5 وہ اقسام ہیں. معلوم نہیں ہے سسٹر, وہ بھی ہی مزید کر کے. اقسام ہیں. تو ہم، مفعول یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مفعول بھی ہی کہلاتا ہے. ویسے آپ اوکے اس کو سسٹر. مفعول بھی عام جو استعمال میں کہہ دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مفعول بھی ہی اچھا یہ من رأیتا فی السوق. من رأیت فی السوق. آپ کس کو دیکھا بازار میں. آپ کس کو دیکھا بازار میں. اس میں آپ کو فعل فاعل آتا رأیتا میں. من کو ہاں کے اندر. مفعول ہو جائے گا نا سسٹر. کس کو رہنے سے ہاں مفعول ہو جائے گا نا سسٹر. ہاں یہ مفعول کے. ہاں مفعول کے ہاں, لیے یہ استعمال ہوا آپ ہے کو تو مفعول کے متعلق فعل متعلق ہو بول جائے رہا گا. ہے. یہ فی السوق آپ کو فی متعلق السوق فعل ہو جائے ماضی گا. سے. ہاں تو یہ تم نے بازار میں کس کو دیکھا. کس کو دیکھا. ماذا اکلت. یعنی کہ ہم نے کیا. کہا تھا ماں جو ہے وہ غیر عاقل یا کسی چیز ہاں, کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. چیز. اور من جو ہم, ہے وہ عاقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جی من کی اگزامپلس تھی. اور جی ماذا جی. اکلتا. ہاں, کیا چیز آپ نے کھایا. نہیں, یا تم نے کھایا. کیا چیز تم نے کھایا. ویسا آئے گا نا سسٹر. ماذا کو غیر عاقل چیز کو ویسا نہ آئے گا سسٹر. ہلو. جی آواز نہیں آ رہی ہے. جو بھی میرا نیٹ جو ہے وہ ہاں جی میرا نیٹ جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو اس لیے جو ہے نا وہ جی تھوڑا سا ہوا. میں دوبارہ اس کو شیئر کرتی ہوں. ایک منٹ. جی سسٹر. کیا تم نے کھایا. نہیں کیا آپ نے کھایا نہیں. اچھا اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہمارا جو اس میں استفہام کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا. آواز آ رہی یہ دیکھیں. پھر ہم نے بعد اکلتا تم نے کیا کھایا. ٹھیک ہے. تم میم نے ہو کیا گئے ہم. کھایا. اردو میں ہاں, جی میرا تو ہو گیا کیا ویسے. کھایا. تم نے کیا کھایا. جی تم نے کیا کھایا کو اکلا کو فعل ہو جاتا سسٹر. انت فائل اس میں. ہاں ماذا کو مفعول ہو جائے گا نا سسٹر. ہاں مفعول کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے ماذا. ماذا ماذا. اکلتا تم نے کیا کھایا. ہاں, نیکسٹ کیا ہوگا. ماذا
सनात अल माजा यौमा। सनातल अल यौम। सना का तो क्या सिस्टर? सना। बनाया, बनाना होता है ना। ओके। क्या तुमने बनाया? आज तुमने क्या बनाया? आज तुमने क्या बनाया? हम्म। इसमें क्या बनाया? इसमें सना, सना को फैल अंत फाइल हो जाएगा। माजा को मफूल हो जाएगा। अल्योमा को ये मुतालिक, क्योंकि जर्फ रहने से। हाँ, ये क्या होगा? जरफे जमान, इसका बताए ना, पूरा बताएं। जर्फ जरफे जमान रहने जमान से है मुतालिक। और मंसूब। मुता जरफे जमान क्या होता है? मंसूब होते हैं ज्यादातर। जी पूछे। आपने ये जो था क्वेश्चन, मन रहा है तो फिसूक, फिसूकी, मन राइता फिसूकी। जी। तो इसका तर्जुमा किया था कि तुमने बाजार में किसको देखा, जी। हम्म। तो तुमने कहाँ से आया? और ता है ना सिस्टम। ता, ता से। ओके ओके ओके। ठीक है। या अच्छा, यहाँ पे अयाना यकाउ यौमल यौमुल कियामा। हाँ, अय्याना यकऊ यौमल कियामा। कब क़यामत का दिन वाक़ हुआ, वैसा ना सिस्टम वाकया होगा। होगा। अच्छा, ये असल में फेल मुदारा आगे इसकी बीच में कोई इसका था, तो ये फेल मुदारे बीच में लगा तो आएगा, मतलब इसका मतलब ये होता है कब आएगा। आएगा, कब लेकिन आएगा। हाँ। हाँ, तो लेकिन ये इसका याना का इस्तेमाल आपको बता रहा है कि ये ज्यादातर जो अजीम वाकयात होते हैं, ये कोई बड़ी चीजों के मुतालिक सवालात के जी लिए जी। याना का लफ्ज होता है। इसका मतलब भी मता की तरह का भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे हम्म। जरफे इसको और इसके बारे में बताया, याना के बारे में। ये जरफे जमा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जरफे जमा ओके होता सिस्टर। है ये ना, ज़र्फ़ याना ज़मान। मता की, हाँ। मता मीनिंग इसका मता की तरह ही होता है ना, कब। तो ये वो भी जरफे कब जमा कब होता है, तो कब याना भी सिस्टर जरफे हो। जमा होता है। ये मता हाँ, ये कब। ज़र्फ़ ज़मानिच ज़मानिच। हाँ, और आगे जो है ना, उसको फेल को आप डिस्क्राइब ना करें, क्योंकि वो फेल जो है वो दूसरा है। आगे हाँ, जो है ये भी फैल अल-यौम। मुदाराता आएगा ना सिस्टर? ये भी याती का तो या आया तो मुदारात ना सिस्टर, वो भी। हाँ, उसको आप फेल को ना डिस्क्राइब करें, आगे नेक्स्ट करें, यौमुल कियामा। हाँ, यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन। इसमें आपको ज़र्फ इस मुदाफ मुदाफ इलैह बन के आ रहा है। हाँ, ये यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैही है। और ये आपको क्या मुतारिक बनेगा ना सिस्टर? कैसे मुतालिक कैसे बनेगा? क्योंकि दो चीजें मुतालिक ज़र्फ रहने बनती हैं। से, ज़र्फ रहने से। नहीं, जर्फ कहाँ पे है? जर्फ जर्फ तो है, वो तो यौम है ना इसमें याना। यौम को ज़र्फ ना होगा सिस्टर, नहीं की। नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे तो क्यामत के दिन का बात हो रही है ना। अल यौमा जो होता है ना, वो कहते हैं आज को। अल ओके यौमा ओके। जो इस्तेमाल होता है ना, यौम वैसे दिन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी दिन के लिए ना। लेकिन अल अच्छा। यौमा जो है ना, वो जर्फ के तौर पे इस्तेमाल होता है, आज वो वक्त के लिए इस्तेमाल होता है ना। ओके ओके। यौमा जो है ना, वो एक दिन, दो दिन, या कोई भी तादाद हाँ दिनों की हाँ, बताने वक्त के लिए। वक्त का। अच्छा, बराबर। अच्छा, यहाँ अय्या पे अयाना अय्याना इबादुल्लाह। याति वादुल्ला। या याति छोड़ दूंगी सिस्टर मैं। अय्याना कब आएगा, कब होगा अल्लाह का वादा। हाँ, अल्लाह का वादा। तो वादुल्लाह क्या है? अल्लाह, ये मुदाफ मुदाफ इलैह। हाँ, मुजाफ मुजाफ इलैही है। तो यहाँ पे वादुल्लाही, अयाना वादुल्लाही। यहाँ पे अयाना हम्म। ज़र्फ़े ज़मा है, और यहाँ पे जी। वादुल्लाही मुजाफ इलैही है। तो आगे नेक्स्ट करें, अन्ना के साथ दो क्वेश्चन है। हाँ। अन्ना हसलता अन्ना अला हाज़िल। हसलता अला हाजल किताबी। कहाँ से? अच्छा। आप हासिल किया किसका हासिल किया? हाँ, इस कैसे? किताब। हाँ, कहाँ से या कैसे? कैसे आप हासिल किया इस किताब पर इतना सिस्टम को किताब, जी इस को। किताब पर। अच्छा, ये बात बात देखिए, ऐसे होते हैं फेल, जैसे हम कहते हैं ना, अरबी इंग्लिश में भी होती है कि प्रेपोजिशन लगती है किसी फेल के साथ ना, किसी वर्ब के साथ। हाँ जैसे लिसन टू आता है, कॉन्फर हाँ अपॉन आता है, यानी कि इनके साथ मखसूस प्रेपोजिशन होती हैं। लिसन टू आता है,
ओके ठीक है। ओके इसी तरह से ना ये अरबी में भी ना हसलता है ना, हसलता के साथ प्रपोजिशन अला की इस्तेमाल होती है। जैसे ज़ाहबा अगर होगा तो उसके साथ प्रपोजिशन इला की आएगी, ठीक है। तो जी इस तरह जी। से अगर दाखिल आए तो अगर हम उसके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो फी की करेंगे, ठीक है। इस नहीं तरह तो से हसलता जो है ना हाँ, कहाँ से हासिल किया आप इस किताब को बराबर आएगा ना, हाँ सेट होगा। जी, इस किताब को कहाँ से हासिल किया। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। जी रोल अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 81 सुनीला नेक्स्ट। ज्यादातर लिसनर हैं आप लोग, जो आना चाह रही हैं वो आ जाएं। फातिमा मैम आप आ जाएं। मैम स्टूडेंट रोल नंबर नहीं लिख रहे फात हैं, तो नाम से कॉल करें। आप अपना रोल नंबर लिख लेते। फातिमा, फिर फातिमा आप ही आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे है अन्ना तुहयिल मौता। अल्लाह तो ये अन्ना के होता बारे में हमने पढ़ा था कि अन्ना जो है ना वो कहाँ से और कैसे के लिए इस्तेमाल होता है। है। तो अभी ये जी जो जी जो फेल है आप इसको नहीं डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये फेल मुदारे है। बस ये हमने सवालात बनाने के लिए तो हमने लेके आए हैं। अन्ना अन्ना क्या है, तो ही अल्लाह कैसे, यानी कैसे तो हील होता जिंदा करेगा मुर्दों को। अल मौता, तो मुर्दों को। तुम कैसे जिंदा करेगा मुर्दों को, क्या करेगा मुर्दों। ठीक है। जी। नेक्स्ट बताए अईना जलस तालिबू। अच्छा तालिब हो, और स्टूडेंट तालिब इल्म कहाँ बैठा है। आईना जो है हाँ, ये ये आप जो पूरा जलस। इसको पूरा डिस्क्राइब करें इसको ना, आईना जी क्या जी है और आईना। सारा। जी आईना जो है मतलब हुर्फ इस्तेफामिया, अस्मा इस्तेफामिया है। जलसा जी जो है फेल है, अत्तालिबु फाइल है। अच्छा, ये साथ इसको पूरा करा करना। एक तो इसमें इस्तिफाम है और ज़र्फ़े मकाम भी है, ठीक है। इसमें अच्छा इस्तिफाम है और ज़र्फ़े मकाम भी है। और ज़र्फ़ जालसा, मकाम। जलसा फेल है ना, फेल। हाँ फेल है। और आगे नेक्स्ट, तालिबो फाइल, फाइल है, तालिबो फाइल। ठीक हाँ है, रफ़ई फाइल है। हालत में। जी। हाँ, अब ये देखो तो यहाँ पे तालिब आईना इस्तेमाल हुआ है कि मतलब जगह के मुतालिक सवाल किया जा रहा है ना। जी जी हाँ जी। आप इसका एक तर्जुमा क्या होगा। तो तालिब इल्म कहाँ बैठा है, हाँ, तालिब इल्म कहाँ बैठा। कहाँ बैठा। जी। जी, आगे नेक्स्ट अईना वाक़फ़ल आइना मुअल्लिम। वक़फ़ल मुअल्लिम है। जी, वक़फ़ा आइना जो है हर्फ़े अस्मा इस्तिफ़ामिया है, ज़र्फ़े मकान भी है। वक़फ़ा का मतलब खड़े होना, फ़ेल है। अल मुअल्लिमु ये जो है फ़ाइल है। टीचर कहाँ खड़ा है, हाँ, उस्ताद कहाँ खड़ा, कहाँ। जी, उस्ताद कहाँ खड़ा खड़ा हुआ, हुआ ठीक है। है, खड़ा हुआ। जी, खड़ा हुआ। अब किताबन, कम कि, अब कम किताबन किताबन। कराता। जी जी अब जी। कम के ये बारे में कम आप जो पहले है, बताएंगी क्या होता है कम। ये कम जो है कितना, यानी हाउ मच इसमें आएगा तादाद के अस्मा बारे में, तादाद, तादाद। तादाद के जी, बारे में। तादाद के बारे में आएगा। तो उसके बाद वाला इसम हमेशा नकीरा होगा और नसब में होगा। इसका एक हाँ कंडीशन हाँ, है तो कम के नस्ब भी बाद। होगा, नकरा होगा और और वाहिद भी होगा, नकीरा होगा, ठीक है, वाहिद होगा। वाहिद भी जी जी। होगा। वाहिद, नकीरा और मंसूब, नस्बी हालत में। तीन जी इसके बाद पॉइंट्स है। जी मैम। हाँ, थ्री कम इसके पॉइंट्स हैं। किताबन करार था। जी, तुमने जो है आ, कितनी किताबें पढ़ी, किताब पढ़ी, हाँ, तुमने कितनी किताबें पढ़ी। यहाँ पे पढ़ी। जो है जी कम जो है हमारे पास आया, इसमें इस्तिफाम और जी। जर किताबन मंसूब हालत में आया। जी, किताबन किताबन, और जी कितने किताबें कराता, पढ़ी। कराता ये मफूल है मैम, मफूल है। नहीं मफूल, मफूल कैसे हुआ कराता। कराता नहीं, सॉरी, फेल प्लस पे फाइल, फेल प्लस फाइल। फेल ब फाइल है यहाँ पे कराता, फेल क्योंकि देखें कराता। गर्दान का ये कराता सातवां सीगा है, ठीक है। जी जी, सातवां सीगा है कराता तो ये है। फेल ब फाइल हाजिर है। का वाहिद मुज़क्कर, जी जी, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। कराता। नेक्स्ट कम दरसन हिफिस्ता। कम दर्स, तुम कितने दर्स याद किए हैं।
कम तो आ हाँ, गया। असबाब ये सबक याद किए। दरसन वाहिद मुज़क्कर और नसबी हालत में है। हाफिज का आपकी आवाज फेल बहुत स्लो हो गई है, आवाज जी नहीं जी जी। आपकी आ रही। अच्छा, फेल व फाइल है, मैं फेल व फाइल है ये हाफिज का। हाँ जी, तीसरा हम 7वां कौन सा? चेहरा है कम। हाँ, अस्माए हाँ इस्तिफामिया है और कितने के लिए इस्तेमाल और इसको होता है। कम के बाद जो भी इसम आएगा वाहिद होगा, नकीरा होगा, नस्बी हालत में होगा। और हाफिज का यानी हाजिर का वाहिद मुजक्कर का सेगा है। दरस्ता तूने यानी हाफिज का। हाँ, तो फेल प्लस तुमने कितने फाइल है मैम। सबक याद किए? तुमने तुमने कितने कितने सबक? सबक सबक याद किए? ठीक है। जी मैम। और आगे जी नेक्स्ट नंबर 14 आ गया, कैफा जी ताइलल मदरसाती। अब ये कैफा के साथ हमारे पास दो सेंटेंस हैं। जी मैम, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा मुझे, स्क्रीन नहीं। एक मिनट। एक सवाल है, इसमें आपने कहा कि कम के साथ जो इसम आएगा वो वाहिद आएगा और तनवीन के साथ आएगा, ये कोई रूल है? जी हाँ, रूल है। हाँ, इसका रूल है। कम जब भी इस्तेमाल होगा ना, कम होता है तादाद के मुतालिक है ना, पूछने के लिए आता है। कम दिरहमन जी इंदा का, कम किताबन इंदा का, हम- कम किताबन जी करा था, तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, या फिर जितना भी तादाद के मुतालिक आएगा उसमें जो भी आपका कम के बाद इस्म आएगा वो वाहिद होगा, नकरा होगा और हाते नसब में होगा। तनवीन के जी साथ, मैम। ठीक है। 14 नजर नहीं आ रहे मैम, 13 तक ही है हाँ स्क्रीन। जी, कैफा जी 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 जी, ताइलल अच्छा। मदरसाती। जी का इलल मदरसती। तुम मदरसे से कब आए? मदरसे की नहीं, तरफ कब नहीं। कब गए? क्या अच्छा, कब नहीं है, कैफा मता नहीं किस है। तरह, किस मता तरह? जी ताइलल मदरसा से होता है, फिर होता जी कैफा। जी जी, कैसे? कैफा कैसे, किस तरह? जी, हाँ, ये जो है अस्माए इस्तिफामिया है और ये जीता फेल ब फाइल है। इलल मदरसती मुतालिक फेल है। मुतालिक फेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे मुतालिक फेल के मुतालिक हमने कल पढ़ा था, वो मुतालिक फेल की क्या डेफिनेशन है, क्या होता है मुतालिक फेल? ये फाइल के बारे में खबर दे रहा होता है ना, नहीं, कि फाइल के कहाँ बारे है। में तो नहीं है। मुतालिक फेल है, मुतालिक फाइल नहीं है। मुतालिक जी जी फेल जी, है। फेल। कल तो हमने इसके कहाँ बारे में पढ़ा था ना। जी जी जी। तो कहाँ पे ने कैफा जो उसके बारे में बता रहा है ना, कि तुम कैसे आए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। कल हमने पढ़ा था मुतालिक फेल के बारे में ना, मुतालिक फेल क्या होता है उसके बारे में बताएं। अभी इलल मदरसा की मुतालिक फेल आया ना। ये हुर्फ जर के बाद जो भी ना इलल हुर्फ जर के बाद। अच्छा, यहाँ पे इसकी होता है कि ये मुतालिक फेल वो होता है कि जो हमारे पास हमें फेल के मुतालिक मालूमात फराहम करता है, फेल के मुतालिक मजीद जो है ना मालूमात फराहम करता है। और ये जी ठीक है ना, तो ये फाइल होते हैं और या ना ही मफूल होता है, ठीक है। ये हमें जी फेल के मुतालिक बताते हैं। है, जी उसका जो है ना फेल के मुतालिक उसकी कोई भी चीज हमें खबर फेल के मुतालिक एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन दे। जी 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 तो ये इनको हम कहते हैं मुतालिक फेल है। जैसे मुतालिक फेल मैंने बताया था कि दो तरह से आते हैं। एक तो जार मजरूर होता है, हरफ जारा के बाद जो इसम मजरूर आता है वो मरकब जारी जिसको हम कहते हैं। और दूसरा एक होता है ज़र्फ प्लस मुजाफ इलैह। सर, ये मिलके जब जी आते हैं तो ये भी मुतालिक फेल बनते हैं, ठीक है। ठीक जी है, तख्त जी शजर आती जैसे है, इलल मदरस आती है, जी फिल मस्जिदी है। जितने भी इस तरह के जी बनते हैं ये हमारे पास है, इनको हम मुतालिक फेल कहते हैं। बताइए। जी जी, अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट कैफा बताएं। कतब। अच्छा, कोई है तो देखें। कैफा कतब तक दरसा, तुमने सबक कैसे कैफा, लिखा? तो हाँ, कैसे कैफा लिखा अब? अस्माए इस्तिफामिया हो गया, कतब कतब का फेल व फाइल हो गया, अदरसा मफूल हो गया। हाँ, मफूलुन कतब बिही का मंसूब।
हाँ मफूलुम बिही मफूल बिही मंसूब हो गया ये वाला, कि तुमने कैसे सबक लिखा। सबक आगे लिखा, सबक लिखा। जी, जी, अब मता नेक्स्ट। साफरा अबू। जी मैम। मता साफरा। हमें स्क्रीन नहीं आ रही है। साफ आ रही है। जी आ गई। मत, चलिए मता साफरा अबू का, यानी जी, मता तो कब आपके अबू लौटे मैम? साफरा का मतलब या सफर किए? नहीं सफर किया है। सफर किया, जी जी जी। मतलब सफरा आना चाहिए ना मैम, साफरा सीन के साथ अलिफ आया हुआ है, सही हाँ, है ये? जी जी। कब तुम्हारे वालिद ने अब कब सफर सफर किया। यानी हाँ, सफर, सफर किया अबू का, जी। मता अस्माए इस्तिफामिया हो गया, सफरा ये जो है फेल हो गया, अबू का ये मुजाफ मुजाफ इलैह बनकर जो है आ, उसका फेल का फाइल बन रहा है ना, हाँ फाइल अबू बन का रहा है, ये हमारे मुजाफ वाले मुजाफ की कंस्ट्रक्शन है। मुजाफ इलैह। ये एज अ जी फाइल यहाँ पे आई हुई है। जी जी। तुम्हारे अबू सफर से कब आए, सफर कब किए? हाँ कब जी, सफर है, सफर से अबू फेल है, का और अबू का फेल जो है फाइल है, फाइल, मुजाफ मुजाफ फाइल नहीं है। मुजाफ मुजाफ और जी। इसका जो हालत रफ में है, ये अबू का किस मुजाफ, ये जो मतलब इजाफी है किस राबी हालत में है। अबू रफ़ई हालत में है ना मैम अबू, हाँ इसके वजह अबू से जो है ये हाँ अबू किन अस्मा में रफ़ई से है हालत। ये। अस्माए खमसा में से है ना, हाँ पांच जो अस्माए है। खमसा में से है, और उनका इराब जो है अस्माए खमसा का इराब वाओ में जो होता है वो हालत रफ शो करता है, अलिफ हो तो वो जी, हालत नसब शो करता है, और या हो तो वो हालत जर शो करता है। जर शो कर। ये अस्माए जी खमसा का इराब होता है। जी जी मैम। समता जी इसके तामिनल मदरसाती। जी, तुम कब लौटे स्कूल से? हाँ तुम कब आए या कब आए, जीता का मतलब जी। ये हाँ, अब ये जो अस्माए, मता, एक और भी चीज मता के बारे में आपने नहीं बताई, वो क्या है। ये टाइम को मेंशन कर रहा है मका, हाँ तो क्या इसको जमा, क्या कहते हैं। ज़र्फ़े अब जमा, हाँ ज़र्फ़े जमा, जरफे जमा, ज़र्फ़े जरफे जमा। ज़र्फ़े जमा। अब ये देखें, जी जी मैम। अब बता हमारा जी, क्यों आया कि हम ये मुतालिक ज़र्फ़े पूछें जमा को ये कब। कर रहा है, जी। जीता, अब ये देखें, ये जीता जो कैफा है भी आ सकता था। अब अगर इसके जी कैफा जी आ जाता, कैफा जीता मिनल मदरसा, कि तुम कैसे मदरसे से आए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने जी हमारा पर्पस जो है ना, हम पूछे कि वह कब आए, के हमने लिए, जुबान जी जी अब, टाइम के मुतालिक सवाल करना है, तो फिर हम बता लेके आए हैं, ठीक है। जी 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 मैम। मता जीता मिनल मदरसती, देखिए जीता फेल बा फाइल, इसमें जो है था जो है फाइल है जीता, फेल बा फाइल, मिनल मदरसती मुतालिक फेल है जो फेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा जी, आगे है नेक्स्ट, जी। अय्यू तालिबिन अय्यु तालिबिन नजाहा। नजहा, नजहा जी। तालिब इल्म नजहा कामयाब ना मैम, सक्सेस। हाँ कामयाब हुआ। काम अय्यू कब कब तालिबिन, अय्युब कहाँ है, कहाँ है कामयाब तालिब इल्म? नहीं नहीं को ऐसे यहाँ पे अय्यू तालिबिन, अय्युब कौन सा तालिबिन, कौन कौन सा? सा अच्छा, तालिबिन। अय्युब कौन अब से अय्यूब के तालिब बारे इल्म? में कहा था ना जी जी कि जी ये। मैम, मुजाफ है तो क्या तालिबिन मुजाफिन इलैह जो है जरी हालत में आया है। हाँ अब ये क्यों अय्यू क्यों आया है यहाँ पे, अय्या या फिर अय्यी भी तो आ सकता था ना। हमने कहा अय्यू जो है ना, वो तीनों अरबी क्योंकि मैम हालतों में ये आता है। मुजाफ मुजाफ बन रहा ना मैम, बाद उसके बाद वाला इसमें मुजाफ इलैह। नहीं वो तो अब है मुजाफ मुजाफ तो तीनों अरबी हालतों में आ सकता है ना, वो तो मुजाफ इलैही जी की है ना। मुजाफ इलैही जी हालत जी। जर में होगा, तो ये अय्यू क्यों आया है, अय्या या अय्यी भी तो आ सकता था ना। क्यों फाइल है, अय्यू आया है। फाइल हाँ है। ये फाइल के मुतालिक फाइल, सवाल पूछ रहे हैं। फाइल, जी 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 ये जी, फाइल फाइल के के मुतालिक मुताबिक, सवाल पूछ रहे हैं, फाइल तो के इसलिए मुताबिक ये हालत रफ में आया है, ठीक सफर। है, अय्यू आया है। जी जी जी। फिर अय्या किताबिन कराता, तुमने कौन सी किताब पढ़ी? हाँ अय्या जो अय्या है जी, किताब। देखिए अब यहाँ पर अय्या अय्या किताबिन ये जो है मुदाफ मुदाफ इलैह, और कराता फेल ब फाइल हो गया।
हाँ, ये फेल बा फाइल हो गया। फिर ये अय्या फाइल किताब, हो अब गया। यहाँ पे अय्या आया है, ठीक है। अय्या किताब, तो जी यहाँ जी पे जी क्यों जी। आया अय्या? अय्या क्योंकि यहाँ पर किताब किताब मफूल। अय्या जो है वो क्यों हालते नसब में आया है? मफूल हाँ, मफूल के मुतालिक किताब सवाल किताब पूछ रहे हैं ना। हाँ जी हाँ हाँ, जी जी। तुमने, अब किताब देखो इनके फेल बा बारे फाइल तो यहाँ पे है ना, करात में फेल बा फाइल है। तो अब में जी 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 ये किताब, तुमने कौन सी किताब पढ़ी? जी 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 ठीक है, किताब यहाँ पे मफूल के मफूल लिए के बारे में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ अय्या आया है। आगे अय्या यहाँ है। पे अय्यूब के साथ फिर आया है, अब बताएं। अय्यू बैतिन बैतिन शरब शरबता इस तरह था शरब तुमने। तरह। हाँ, अय्यू बैतिन इस तरह था, तुमने घर कब खरीदा? नहीं कब नहीं, अय्यू का मतलब कब नहीं होता, अय, कौन सा। कब कौन सा घर खरीदा, कौन सा? हाँ, जी जी। तो ये अय्यू जो अय्यूब है बैतिन, रफा, जी जी, अय्यू बैतिन मुदाफ मुदाफ इलैह और जो है फाइल बन रहा है। फाइल क्यों बन रहा है? अय्यू पेश के साथ आया है ना मैम, नहीं, यहाँ पर रफ़ई हाल। इस तरह था में तो भी इस फाइल है ना। हाँ इस तरह, हाँ इस तरह था तुमने, जी मैम। ता इस जो है ना, तरह ता लगा हुआ है ना। फेल फाइल हो गया, जी 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 जी। फेल व फाइल तुमने हो कौन गया। सा घर, हाँ कौन तुमने सा घर कौन सा घर खरीदा? खरीदा? जी, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहा है। हाँ, तो ये जो है क्यों जो है ना, ये अय्यू आया हुआ है या अय्या लिखा हुआ है, क्योंकि सॉरी ये ये अय्या लिखा हुआ है, अय्यू नहीं है, अय्या है। अय्या, अय्या बैतिन। अय्या, हाँ जी जी जी, तो फिर ये मफूल है ना मैम, बाइट बाइट मफूल बन रहा हाँ है, तो फिर हाँ, यहाँ पे मफूल मफूल के तौर पे आया, तो इसलिए अय्या बैतिन मफूल इश्तराइता, अय्या, तुमने कौन सा घर खरीदा। जी जी। जी, हमारा जो है यहाँ ये पर, कंप्लीट हो गया ये। सिर्फ जी मैंने जी सवालिया ही आज सेंटेंसेस रखे थे कि आप एक ही टॉपिक के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको दूर कर सकें, तमाम अस्माए इस्तिफहाम के बारे में डिटेल के साथ हम लोग जान सकें। जी मैम जी ये जी लास्ट मैम, ये वाला